ویسے تو پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ موٹاپے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 10% لوگ ایسے بھی ہیں جن کا وزن بہت کم ہے، یعنی وہ انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو یہ ویڈیو موٹاپے کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہو گیا ان کی ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو ٹاپک ہے اس پہ بہت کم لوگوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ کم ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور آپ بغیر کسی اپنے جسم کو نقصان دیے، بغیر کسی کیمیکل کے، یا جو نارملی آن لائن کچھ لوگ چیزیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ انڈر ویٹ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں کیلکولیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں BMI یا باڈی ماس انڈیکس۔ اگر اس باڈی ماس انڈیکس کے مطابق آپ کا جو اسکیل بن رہا ہے 18.5 سے کم ہے تو آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے جس کو ہم میڈیکلی انڈر ویٹ کہتے ہیں، یا جس میں وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ اب وزن کا کم ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی لک صحیح نظر نہیں آتی یا ایک اسمارٹنیس ہونے کی نشانی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ اس کنڈیشن کو آن ٹائم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو امپروو نہ کریں تو مزید کچھ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں۔ اگر آپ کا وزن بجائے آپ اچھا کھانے کے، اچھے طریقے سے اچھی زندگی گزارنے کے، وزن آپ کا نہیں بڑھا اور آپ کے فگر جو ہیں بہت چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ کازز ڈسکس کرتا ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ سلوشن کی طرف بھی جائیں گے۔ دیکھیں یہ اگر وزن آپ کا کم ہے تو کچھ لوگ تو اس کو فیشن کے طور پر لیتے ہیں کہ میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں، ٹھیک ہے، کسی حد تک فیشن میں بھی اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹو مچ اسکنی اگر آپ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کا جسم کوئی گھنٹے خطرے کی گھنٹی بھی بجا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جینیٹک ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ کے گھر میں آپ کی نانی دادی، آپ کے دادا والد، ان کا اگر وزن کم ہے، اگر پہلے سے وہ اسکنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں جینیٹیکلی کنڈیشن آتی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، ٹینشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پاورٹی کا شکار ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے انڈر تھرڈ ورلڈ دنیا میں رہتے ہیں یا ماڈرن ملکوں میں بھی رہتے ہیں، لیکن جو ان کے لیول چونکہ ان کی انکم کا کم ہوتا ہے تو وہ اچھی خوراک نہیں کھا سکتے، تو اگر آپ کی غذائی قلت کی وجہ سے وزن کم ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو وہ فوڈ ہی اویلیبل نہیں ہے جس وجہ سے آپ کا وزن بڑھنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات آپ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں ہوتا، آپ کا کھانا پراپر طریقے سے اسیمیلیٹ نہیں ہوتا، یعنی جس طرح سے آپ کی جسم کو اس سے توانائی چاہیے یا وزن بڑھنا چاہیے وہ آپ کو ملتا نہیں ہے، تو کچھ گٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کے کھانے میں ڈائجسٹو ایشوز ہو سکتے ہیں، کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کھانے کو بعض اوقات ڈائجسٹ کرتے ہیں، اگر وہ لائک کرتے ہیں جن کو ہم ڈائجسٹو انزائمز کہتے ہیں تو آپ میں یہ پرابلم اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کھانے کے اوقات کو مس کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی اتنی بیزی ہے کہ آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ الٹی سیدھی ریسیپیز دیکھ کر خود پہ ٹرائی کرنے کا تو ٹائم ہے، لیکن جو سیریس طریقے سے اپنا علاج کرنا ہے اس کے لیے آپ کا ٹائم نہیں ہے، اور آپ وقت پر اپنا جو ہے نا کھانا بھی بعض اوقات نہیں کھا پاتے۔ تو ہماری جو لائف سٹائل ہے، بیزی لائف سٹائل، اور جو سوشل میڈیا نے آج کل ہمیں انگیج کیا ہوا ہے، اور ہم بعض اوقات بغیر تحقیق کے کچھ ایسی ریسیپیز ٹرائی کرتے ہیں جس کے ہمیں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا وزن کم ہے اور آپ غلط طریقے سے اپنے وزن کو بڑھانے کی مختلف کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے کیفین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ خاص کر بزرگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں تنہائی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں تو ان کو خوراک پرووائڈ کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، کچھ لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، امیگریشن کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہے تو ان کو بھی پراپر طریقے سے ڈائٹ آن ٹائم نہیں ملتی، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی وجہ میڈیکلی اس کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے گلینڈولر سسٹم، انڈوکرائن سسٹم میں ایک گلینڈ جس کو ہم تھائرائڈ کہتے ہیں، جب وہ ہائپر ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اوور ایکٹیو تھائرائڈ یا ہائپر تھائرائڈزم کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اگر آپ کے تھائرائڈ کا جو ہارمون T3 T4 وغیرہ بڑھا ہوا ہے تو تب بھی آپ کو وزن جو ہے نا آپ کا نہیں بڑھے گا بلکہ دن بدن کم ہوتا جائے گا۔ تو جب تک آپ اس تھائرائڈ کو فکس نہیں کریں گے، آپ جتنی بھی اچھی خوراک کھا لیں آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، کچھ آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایموشنل کوئی چیزیں چل رہی ہیں، اسٹریس، ٹراما، ٹینشن وغیرہ آپ لے رہے ہیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھتا، اور اس وجہ سے جو ہے جو لوگ پھر بہت زیادہ اور سوچنا شروع کرتے ہیں اور ان کا وزن بجائے آگے بڑھنے کے اور زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
अच्छा, कुछ लोग जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, यानी उनको वो तवज्जो नहीं देती। तो अगर आप इस कंडीशन को मतलब प्रॉपरली ऑन टाइम एड्रेस नहीं करते, सही तरह से इलाज नहीं करते, तो आगे चल के आपके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। ख़ासकर लेडीज़ में एक मसला होता है बांझपन का, इनफर्टिलिटी का, यानी वो ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, उनके लिए कंसीव करना या प्रेगनेंट होना बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनका वज़न इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन जिनका वज़न बहुत कम है, उनका जो बॉडी मास इंडेक्स कम है, उनका फिगर, उनका स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते। इसके अलावा आपके अंदर मुख्तलिफ अज़ा की नाकामी होना शुरू हो जाती है, यानी आपके अंदर ऑर्गन फेलियर्स के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, आपको इम्यून सिस्टम की वीकनेस होना शुरू हो सकती है, और उस वजह से आप में मुख्तलिफ बीमारियाँ ज़्यादा आपको लगने का ख़तरा है, और आपके बार बार हॉस्पिटल विजिट करने के भी चक्कर लग सकते हैं। इसके अलावा जनरली जब आपका वज़न सही नहीं होता, आपके मसल सही नहीं बनते, तो आपका स्केलेटन जो होता है, जो आपका ढांचा है, जो हड्डियाँ हैं, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हर वक्त आप में थकावट का एहसास हो सकता है, आपके हाथ पाँव जो है वो ठंडे हो सकते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वज़न कम होता है, अक्सर उनकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्किन जो है वो सैगिनेस उनमें आना शुरू हो जाती है, यानी लैक होना शुरू हो जाती है, झिल्लियाँ उसमें आना शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ उनके बाल गिरते हैं, अचानक उनका मूड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ वज़न कम होना एक कंडीशन नहीं है, इसके साथ बहुत सारी आपकी और फिज़िकली और इमोशनली कंडीशंस भी मुंसलिक हैं। चलिए अब आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करता हूँ कि अगर आप इनको इस्तेमाल करें, शुरू करें, तो आपकी तबीयत बेहतर हो सकती है और आपका वज़न बढ़ सकता है। देखें, जो प्राइम इसके लिए बेसिक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपने खुराक अच्छी करनी है, और खुराक में भी आपने अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छे फैट्स इस्तेमाल करने हैं। आपने अपनी खुराक में ऐसी प्रोटीन्स इस्तेमाल करनी है जिनकी वजह से आपका जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाए, और ऐसी चीज़ें आपने खानी है जिसकी वजह से आपको अच्छी जो है भूख लगे, क्योंकि अगर आपकी एपेटाइट कम है, आपको भूख नहीं लगती, आप खुराक सही नहीं खाते, तो डेफिनेटली आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। तो भूख बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें आपको किचन में मिल जाती हैं। फेनल का आप इस्तेमाल करें, यानी जो सौंफ होती है वो ज़रूर खाएं, उसके साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा और आपको भूख जो है वो लगेगी। इसके अलावा जो सब्ज़ इलायची होती है, जिसको हम नॉर्मली ग्रीन टी में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके साथ भी आपको भूख की जो है ना तलब होगी और आप अच्छी खुराक खा सकेंगे। लेकिन आपको अच्छी जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छी शुगर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी वाइट शुगर आपने अवॉइड करनी है जो केमिकल वाली है, उसकी बजाय आप जो है ना अनरिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करें, और उससे भी बेहतर है आप सिनेमन का इस्तेमाल करें। तो अगर आपने कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खानी है, कोई केक बनाना है, बिस्किट बनाने हैं, कोई स्मूदीज़ तैयार करनी है, तो बजाय वाइट शुगर डालने के आप उसमें जो है ना स्वीटनर जो अगर आपने डालना है तो आप सिनेमन का इस्तेमाल करें। तो सिनेमन भी आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, आपके जिस्म में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी का मसला है उसको बेहतर करती है, और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है, और उससे आपके वज़न के बढ़ने का मसला हल हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों में कुछ वाइटामिन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो ख़ासकर आपको चाहिए कि आप एक बैलेंस मल्टीविटामिन जिसमें मिनरल्स भी हों वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तो वो एक एडिशनल सपोर्ट आपको मिलेगी। खासकर आपने वो विटामिन लेने हैं जिसमें आयरन ज़रूर होना चाहिए, उसमें जिंक होना चाहिए, विटामिन B12 और ओमेगा 3 होने चाहिए। अगर ये 4 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर आप रोज़ाना लेते हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन B12 और ओमेगा 3, तो इसके साथ भी नेचुरल तरीके से आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। तो बजाय आप जो है ना 50+ जो मल्टीविटामिन होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप सेलेक्टिव विटामिन लें, सेलेक्टिव जो मिनरल्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, तो उसके साथ आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ आप जो है या तो मछली का इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होती है, खासकर टूना फ़िश आप ज़रूर इस्तेमाल करें, सामन का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर खाएं। और अगर आप फ़िश नहीं खा सकते, अगर आप वेजिटेरियन हैं या कोई एलर्जी का मसला है, तो आप उसकी बजाय फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्लैक्स सीड के जो बीज होते हैं उसका आप स्मूदीज़ में इस्तेमाल करें, या डायरेक्ट उसके सप्लीमेंट मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो गट का अगर मसला है, डाइजेशन का मसला है, तो उसमें आपको सपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसमें खासकर 3 मेडिसिन जो नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को देते हैं और हमें 80-90% बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक तो मेडिसिन जो हम नॉर्मली मदर टिंचर में देते हैं या उसके सप्लीमेंट मिलते हैं, उसका नाम है अल्फाल्फा। तो इसके नॉर्मली टॉनिक्स भी मिलते हैं। अल्फाल्फा टॉनिक आप जिस मुल्क में भी रहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्फाल्फा एक ऐसी प्लांट है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आपकी भूख को बढ़ाती है और आपके वज़न के बढ़ने में बड़ी मदद करती है। तो ये आप टॉप ऑफ द लिस्ट अपने साथ लिख लें कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन का नाम है आयोडियम, जो कि आयोडीन से बनती है, क्योंकि जिन लोगों में ओवर एक्टिव थायराइड का मसला होता है उनमें आयोडीन की जो है ज़्यादती होती है, लेकिन आयोडियम जब मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी और आपका जो थायराइड का मसला है बैलेंस होगा, तो आपको वज़न भी बराबर होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ एक और मेडिसिन का नाम है नेट्राम्योर, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये वो लोग होते हैं जो बजाय बहुत ज़्यादा खाना खाने के भी उनका वज़न नहीं बढ़ता। एक और मेडिसिन होम्योपैथी में उसका नाम है एब्रोटेनम।
ये वो लोग होते हैं जिनका सर आपने देखा होगा बड़ा होगा, यानी ऊपर की तरफ से वो बड़े होते हैं, लेकिन उनका जिस्म जो है नीचे बड़ा पतला होता है, दुबला पतला होता है, पेट उनका अक्सर बाहर की तरफ निकला होता है। अक्सर बच्चे आपने देखे होंगे गलियों में, बाज़ारों में, जो अक्सर कपड़े नहीं पहनते, तो सर उनका बड़ा, पेट उनका निकला हुआ और वज़न उनका कम, तो उनके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एब्रोटेनम, तो आप अपना कंस्टिट्यूशन देखें कि आपकी जिसामत कैसी है, उसके मुताबिक अगर आप दवाई लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें भरपूर तवानाई हो, एनर्जी हो, आप स्मूदीज़ बना के पिएँ, आप बोन ब्राथ यानी यखनियाँ बनाएँ, यानी हड्डियों की यखनी, सब्जियों की यखनी, उसमें होगा कि पूरी आपको एनर्जी मिलेगी और जो वज़न आपका गलत तरीके से बढ़ना है वो एक अच्छे तरीके से बढ़ेगा। लेडीज़ के लिए ख़ासकर एक चीज़ होती है हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, जब उसमें इम्बैलेंस होता है तो उनका वज़न नहीं बढ़ता, उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, उनकी लुक में प्रॉब्लम होता है, उनके मूड स्विंग्स का मसला होता है, तो आप एस्ट्रोजन बेस्ड जो फूड हो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप चॉकलेट, जो ब्राउन चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, उसका आप बटर जो होता है पीनट बटर के साथ मिक्स करके आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर आप उसको ब्रेड के ऊपर लगाएं, अपनी रोटी के ऊपर लगा के खाएं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नॉर्मली तो हम बटर मना करते हैं उन लोगों के जिनका वज़न बढ़े हुए, लेकिन जिनका वज़न कम है तो वो चॉकलेट बटर, पीनट बटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक अच्छे बैलेंस तरीके से प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें, हेल्थी फैट्स खाएँ। हेल्थी फैट्स में आपको देखें ना, नट्स एंड सीड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जड़ी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें हो गया एवोकाडोज़ हो सकते हैं अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं। इसके अलावा बादाम आप खाएँ, कैश्यूज़ खाएँ, पीनट्स का इस्तेमाल करें, तो वो हेल्थी फैट्स हैं, उसके साथ आपके वज़न बढ़ने में फ़ायदा होगा। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप घर में स्मूदीज़ बनाएं। स्मूदीज़ में मैं आपको एक रेसिपी बताता हूँ कि आप जो है ना, बनानास यानी केले, उसके साथ आप थोड़े से मैंगोज़ का इस्तेमाल करें और उसमें डालें आप या तो होल मिल्क या सोया मिल्क, इसका आप इस्तेमाल करें, इसकी स्मूदी बनाएं और आप पिएँ। अगर आप चाहें तो इसमें आप हनी डाल सकते हैं, इसमें मैंने बताया बादाम आप डालें, कुछ आप इसमें पिस्ता डालें, यानी मुख्तलिफ जो नट्स एंड सीड्स आपको पसंद है वो इसमें क्रश करके डालें, और अगर आप इसमें फ्लेवर और डालना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरीज़ का ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्मूदीज़ हैं जो आप घर में बना सकते हैं, यानी आप मुख्तलिफ रेसिपीज़ बना सकते हैं। नंबर 1 रेसिपी मैं आपको बताता हूँ, बनानाज एंड मैंगोज़ को आप मिक्स करें। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी बजाय स्ट्रॉबेरीज़ को मिक्स कर सकते हैं और साथ कोकोआ और ओट्स डालें, यानी जो दलिया होता है उसका इस्तेमाल करें, तो उसके साथ भी आपका वज़न बढ़ेगा। तो मुख्तलिफ आप रेसिपीज़ जो भी आपको अच्छी लगती हैं, जिसका भी टेस्ट आपको या फ्लेवर अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस तरह की स्मूदीज़ बनाने का, तो आजकल मार्केट में ओट्स बार्स मिलती हैं, यानी बनी बनाई जो है ऑर्गेनिक बार्स मिलती हैं। तो बजाय टाफ़ियाँ खाने के, बबल्स खाने के या शुगर वाली गोलियाँ खाने के, आप ओट्स बार का इस्तेमाल करें। वो फुल ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, उसमें फ़ाइबर अच्छे वाला होता है और उसमें मुख्तलिफ उन्होंने नट्स एंड सीड्स भी फोर्टिफाइड तरीके से डाले होते हैं, तो विटामिन भी आपको मिलते हैं। तो इस तरह से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अंडे आप ज़रूर खाएँ, मेवे खाएँ। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जंक फूड आपने नहीं खाना। जंक फूड का आपको नुकसान होगा, उसके साथ वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो ऑयल्स होते हैं या जो उसमें फ्राइड चीज़ें होती हैं वो आपको नुकसान दे सकती हैं। लेकिन अगर आप होलिस्टिक तरीके से, बैलेंस तरीके से डाइट को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। साथ ही साथ मेथी दाना, फेनुग्रीक बड़ी हेल्प करती है। अश्वगंडा एक हर्ब है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं आपके साथ वैरायटी ऑफ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। जिस मुल्क में भी आप रहते हैं और जो चीज़ भी आपको सूट करती है, ये तमाम वो चीज़ें जो कि आपके वज़न के बढ़ने में मदद कर सकती हैं और आप एक हेल्थी फिगर के साथ लोगों के सामने आ सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये तमाम चीज़ें लेने में मुश्किल हो रही है, आप एक सिंपल तरीके से अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके मैं पैकेजेस या समझें एक मेडिकल बॉक्स अपने पेशेंट्स के लिए या एक समझें होलिस्टिक सपोर्ट किट बनाता हूँ। तो उसमें तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैंने डाली होती हैं। तो अगर आपको एक रेडीमेड किट चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो एक मिलेगी डाइट चैट, कि आपने किस तरह का चार्ट फॉलो करना है, डाइट प्लान कैसे करनी है। साथ ही साथ जो सप्लीमेंट मैंने आपको बताया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, सिनेमन, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं उसके हमारे अपने सप्लीमेंट्स, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई वेट गेन के लिए, वो हम आपको देंगे। तो अगर आप इन पिल्स को 2 या 3 टाइम दिन में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपके थायराइड भी बैलेंस होगा और अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक ऑयल हम आपको बना के देंगे जो कि होता है अरोमाथेरेपी एसेंशियल ऑयल, क्योंकि अरोमाथेरेपी में भी कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खासकर मैंडेरियन और कोरिएंडर, इसमें हमने डाला हुआ है मैंडेरियन और कोरिएंडर, तो उसके साथ भी आपकी भूख बढ़ती है और आपका जिस्म जो है ना वो फलता फूलता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको अपने जिस्म पर अप्लाई करते हैं। सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक बोनस रेमेडी शेयर करता हूँ, रेसिपी शेयर करता हूँ, और वो बोनस रेमेडी है, आपने डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो खजूरें होती हैं, और खजूरों में भी अगर आपको अजवा डेट्स मिल जाए तो वो बहुत बेहतर होगी। तो आपने ये करना है कि तकरीबन 4 या 6 अजवा खजूरें रात के वक्त आपने भिगो देनी है और अगली सुबह उठकर उनको आपने
गर्म दूध में मिक्स करके और उसमें थोड़ी सी सिनेमन और कार्डामन का इस्तेमाल करके, यानी दारचीनी और जो इलायची होती है वो डालनी है, और ये आपने हफ्ते में 2 से 3 टाइम ये जो ड्रिंक पीनी है। और आप देखेंगे, मैं शर्तिया कहता हूँ कि 3 से 4 महीने में आपका वज़न काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अजवा खजूरें आप गर्म मिल्क में सुबह के वक्त उठ के उसमें थोड़ी सी इलायची और सिनेमन का डालें। लेकिन अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, रेडीमेड अगर आपको बॉक्स चाहिए जिसमें आपको अल्फाल्फा भी मिलेगा, जिसमें आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी मिलेंगी, हर्बल सप्लीमेंट भी मिलेंगी, तो बजाय आप इतनी मेहनत करने की कोशिश करने की, आप आसानी से इस सप्लीमेंट बॉक्स को 2-3 महीने इस्तेमाल करें और आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि आप अगर कोई बीमारी का शिकार हैं, कोई अंडर नरिशमेंट का मसला है, कोई सेकेंडरी कोज है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करें। आप किसी लोकल क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से मिल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं टेली कंसल्टेशन के साथ भी आपको और स्पेसिफिक चीज़ें भी सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वज़न का एक लेवल तक बैलेंस रहना हमारी सेहत की अक्कासी करता है, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं और अगर हमारी बिल्ड ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन ठीक है, तो वही हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं कि हम इंसान किस तरह से हैं, हमारी सोचें कैसी हैं। और क्योंकि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो आप अपने फेस को, अपनी लुक को बेहतर करें, और दुनिया में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए प्रॉस्पेक्ट्स, आपके लिए रिश्ते, शादी वगैरह, जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और मौजू पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय।